अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। नामपल्ली स्टेशन रोड पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की मुहिम चलाई गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ड्रिंकिंग ड्राइव यहाँ पर चेकिंग हो रही, देख सकते हैं नामपल्ली स्टेशन चौरस्ते के पास। टीआरएस पार्टी के लीडर ने 2 दिन पहले 6 साला मासूम बच्ची का बलात्कार किया था। आज आईटी मिनिस्टर केटीआर ने नीलोफर हॉस्पिटल जाकर उस बच्ची के घर वालों से मुलाकात की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फसलांसर अहमदनगर के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। आवाम अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन पर 20,000, 30,000, 40,000 जैसे चालानात आयद कर रहे हैं। जैसे ही ये इत्तला नामपल्ली एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन साहब को मिलते ही एरिया कॉरपोरेटर को हिदायत दी कि मौके पर पहुंचकर अहदेदारों से बात करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम लोग यहाँ से एहतजाज किए हैं और उनको ये बताया कि गैर ज़रूरी यहाँ पे चालान किए जा रहे हैं और इनको टारगेट दिया गया कि आज का दिन है, इनको 100 चालाना चाहिए। तो ये पूरे अहमदनगर में चालाना किए जा रहे हैं और जब हम मेंटेनेंस के लिए पूछा जा रहा है तो ये मेंटेनेंस ज़ीरो बता रहे हैं। ये यहाँ पर जो बजट लगना है ये साल ज़ीरो बजट लगा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि इनको पोल की तब्दीली की जाए, निकाल के दूसरा लगाया जाए। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि करेंगे, मगर बिल्कुल यहाँ पे कोताही हो रही है। कोई काम में यहाँ पे मेंटेनेंस ज़ीरो हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर ये जो मीटर रीडर्स आ रहे हैं ये लोग बिला वजह के घरों में पैसे लेकर बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे भरेंगे, आकर यहाँ पर पैसे नहीं भर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पैसे लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की जानिब से ये गलत है और हमने एडी साहब को भी बताया है। एडी साहब ने तयख़ुन दिलाया कि ये आइंदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरीके से ये लोग कोताही करते रहेंगे, मेंटेनेंस बराबर नहीं करेंगे और लाइट। जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाके शाहीन नगर पैराडाइज फंक्शन हॉल में टीआरएस पार्टी की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में टीआरएस पार्टी वर्कर को ओहदों से नवाजा गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। సర్టిఫికేట్ ఇస్తే తప్పకుండా రేపు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా బాధ్యత ఏర్పడుతుందని ఆలోచనతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీటింగ్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసిన ఖలీఫాకి టీం అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను।
వీళ్ళందరూ కష్టపడ్డారు. కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు, సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు, యూత్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ కూడా కష్టపడ్డారు. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ అనౌన్స్ చేద్దాం. చేస్తున్నప్పుడు దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ మీకు అందరికి ఒకటి, ఈరోజు పదవి తీసుకుంటున్న వాళ్ళందరూ ఖలీఫా కావచ్చు, మామూలు అందులో మెంబర్ కావచ్చు, బీసీసీఎల్ కానీ ఎస్సీసీఎల్ కానీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా ఒక ఖలీఫా అంటే ఖలీఫా ఒక్కని బాధ్యతనే కాదు, అందరి బాధ్యత పార్టీని నడిపించడానికి. ఈరోజు ఇందులో మెంబర్స్గా పార్టీ నుండి తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవ్వండి. ఈరోజు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానో మీరు ర్యాలీ తీస్తే అంత బాధగా కూడా వచ్చాను నేను ఇక్కడికి. ఎందుకంటే రోడ్డు మీద డ్రైన్ పోతా ఉంటే మనందరి బాధ్యత కూడా అధికారులను తీసుకొచ్చి ఆ డ్రైన్ చూపించి పని చేయించాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. ఈరోజు ఇక్కడ నుండి మొదలు పెట్టి అక్కడ దాకా రోడ్డు మీద డ్రైన్ పోతా ఉంది. జనరల్ పబ్లిక్ అయితే అడగలేరు, కానీ టీఆర్ఎస్ కండా కప్పుకున్న వాళ్ళు అడగొచ్చు, కౌన్సిలర్స్ అడగొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికి పోయి ఇది మేడం కాన్స్టిట్యున్సీ, మేడం బాధ్యత ఉంది, మేము మేడం దగ్గర తీసుకెళ్తాం, పని చేస్తావా చేయవని టీఆర్ఎస్ కండా కప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడగండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డేట్ చూస్తే కొంచెం బాధ అనిపించింది. ఇప్పుడు మీటింగ్ అయిపోయిన ఫస్ట్ ఆ వర్క్ చూస్తాను నేను. ఎందుకంటే సీఎం గారు ఒకటే చెప్తా ఉంటారు, ఏ మీటింగ్ అయినా మొన్న మనకు అసెంబ్లీలో ఇప్పటికీ 2-3 సార్లు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా సీఎం గారు మాట్లాడతారు స్పెషల్గా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ అన్ని కూడా, ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ నేను సీఎం గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రోజు పని చేసుకొని బతుకుతూ ఉంటారు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఇండ్లల్లో ఉంటారు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి డ్రైన్ సరిగ్గా లేదు, రోడ్ సరిగ్గా లేదు, వాటర్ లైన్ వేసుకురావాలి, లైట్స్ సరిగ్గా వేయాలి, సిటీకి ఇంత దగ్గర ఉన్న సిటీలో ఉన్న సౌకర్యాలు ఇక్కడ లేవు అనేది సీఎం గారికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటా. నాకు చాలా డబ్బులు కావాలి, నేను ఇవన్నీ చేయాలంటే నాకు ఫండ్స్ ఇవ్వండి అని సీఎం గారిని అడుగుతూ ఉంటా. ఈ మధ్య सीएम గారు కొన్ని ఫండ్స్ రిలీజ్ చేశారు, చాలా చాలా థ్యాంక్స్ గౌరవ్. कामारेड्डी में कोरोना वबा की वजह से रोकी गई ट्रेनों का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। आइए सुनते हैं ट्रेन के अहम अहदेदार जिम्मेदार का बयान। से लेकर सिकंदराबाद तक तो हमारे हेडक्वार्टर्स की पूरी टीम है, विभागाध्यक्ष की और डिवीजन से डीआरएम साहब और उनके ऑफिसर्स की टीम है। हम लोगों ने रास्ते में सेफ्टी एस्पेक्ट्स, हमारे पैसेंजर कम्युनिटीज़ के लिए और फ्रेट कस्टमर्स के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किए हैं, इसका सबका जांच किया है। और रास्ते में ब्रिजेस, लेवल क्रॉसिंग्स, रोड अंडर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज और स्टेशंस पे सिग्नलिंग इक्विपमेंट, पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग, इन सब का सेफ्टी ध्यान में रखते हुए सबका निरीक्षण हुआ है। और रास्ते में हम लोग कई जगह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं और आदरणीय एमपीज, एमएलएज, इनसे भी मुलाकात हुई है और काफ़ी सारे सुझाव और सजेशंस मिले हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कि किन गाड़ी का स्टॉपेज चाहिए, कौन सा नया गाड़ी चाहिए, स्टेशंस पे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और इन सब का हम ध्यान में रखते हुए अगले महीनों में कुछ काम करेंगे। जो कुछ जो बहुत ज़रूरी है उसको पहले किया जाएगा और बाकी सब भी कामों पे भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक इस कामारेड्डी स्टेशन का सवाल है, इधर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। ये फुट ओवर ब्रिज को एक्सटेंड किया गया है और क्या गुड शेड्स को इम्प्रूव किया गया, लाइटिंग वगैरह इम्प्रूव की गई है, ये फ्लैग पोस्ट लगाया गया, लिफ्ट का सैंक्शन है वो अगले साल होगा। और ये कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड इसको चेंज किया गया है। ओके सर। और हाई मास्ट लाइट्स लगाए गुड शेड, सर्कुलेटिंग एरिया का इम्प्रूव किया गया, सेकंड एंट्री साइड पर, और स्कूटर शेड भी बनाया गया है। नूरखान बाज़ार में एक जूतों की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। शुक्र है किसी जान का नुकसान नहीं गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई जरा पीछे हट जाओ, हसन फजट यहाँ आओ, आप फैलते बंदे आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, हट जाएंगे। पहले तो भी आना था मेरे पास पूरे। आज अचानक 4 बजे दिन में कटलगोड़ा शेरियान मंजिल शादी खाने के अंदर फायर हुआ। इसके धुआं निकलने पर हमारे को इत्तला मिलते ही हम मिर्चोक पुलिस
इत्तला दिए। मीर चौक पुलिस के सर्कल साहब उनका स्टाफ आया, काफ़ी मदद करा। उसके बाद उन्होंने फायर इंजन को कॉल करे। फायर इंजन आने के बाद ये पूरा बुझाए। इसकी किस तरीके से लाइट का हुआ या किस तरीके से इसका तहकीकात कर रहे हैं, जलने की वजह अभी तहकीकात करने के बाद मालूम है। रात हो गई इंशाल्लाह ताला। अभी कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रबर था, वो रबर जला, उसका धुआं ज़्यादा लगने की वजह से गोदाम था सर? चप्पलों का। तो कितना नुकसान हुआ मालिक? नहीं, नुकसान का नहीं बोल सकते, कुछ भी इसका भी कोई तला नहीं है। अभी समझो आप कुछ जानी नुकसान हुआ, समझो फायर इंजन आया, हमारे को जैसा मालूम हुआ आए। आने के बाद मीर चौक सर्कल साहब आए, ACP साहब अनंत साहब आए यहाँ पर। ACP अनंत साहब, मीर चौक सर्कल साहब, पूरा स्टाफ पूरा मदद करे। महल्ले के हमारे तमाम पूरे इब्तदाई मजलिस के अरकान यहाँ पर आए। आने के बाद पूरे हमारे MLC साहब भी आए हुए थे। आने के बाद पूरा समझो हम लोग बजाए। नहीं, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग आए, आने के बाद पूरा समझो जो सामान था बाहर कर दिए। उसका फायर इंजन आई, सर्कल साहब खुद मौजूद है, ACP आनंद साहब भी थे, किसी को कुछ जानी नुकसान हुआ। अभी पास ये घरा रहने के बाद इस तरीके का गोडाउन रहना कहाँ तक दुरुस्त? नहीं, ऐसा कोई बड़ा गोदाम नहीं है, छोटा सा है वो। अचानक कैसा हुआ पता नहीं, वो तो खैर बाद में तहकीकात। हुजूराबाद के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मीटिंग गांधी भवन में मुनक्किद की गई। ఈ ఇష్యూలో ఎప్పటి నుంచో పార్టీతో ఉన్నాను. మరి మీ అందరికీ తెలుసు అసలు ఇష్యూ దానికంటే ముందు ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది. కేసీఆర్ ఎప్పుడో కేటీఆర్కు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు. అప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ గారు ఒక వర్డ్ అన్నారు, మేము కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్మే, పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి మేము కూడా ఉన్నాము, మాకు అడగకుండా నీ కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అంటే ఎట్లా అన్నట్టు ఆయన ఫీలింగ్ ఇచ్చిండు. దాడికెళ్ళి పంచాయత్ పడ్డది. ఇది ఆ పంచాయత్ పోయి భూముల దగ్గర పోయింది, భూముల దగ్గర పంచాయతీకి పోయింది, ఆడికెళ్ళి కమిషన్ల మీద పోయింది, కమిషన్లకు వెళ్ళి రాజీనామాకి వచ్చింది. ఇది కహాని. దాని మీద జనాల్లో ఇద్దరు కలిసిపోయినరు. కేసీఆర్ అహంకారానికి దెబ్బ కొడదాం, తెలంగాణ అందరు కష్టపడితే తెలంగాణ వచ్చింది, నేను కూడా కష్టపడ్డాను అని నా కోటేయండి, ఆయనకి అహంకారంకి మీరు నిరసన, ఆయనకు బుద్ధి చెప్పండి, చెంప వాయించండి అన్నాడు. మరి దీంతో సహా ఇక పోతే డబ్బులు మీ టీవీలలో చూసినాం. ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేసినాం. ఒక ఈచ్ ఓట్ 6,000 నుంచి 10,000కు ఒక్కొక్కటి ఇచ్చిన సంగతి హోల్ ఇండియానే కాదు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంది. అవా ఇండియా में इतना पैसा है, ఒక ఓటుకు ఇतना पैसा देते क्या అన్నట్టు డిస్కషన్ జరుగుతుంది. మరి కేసీఆర్ గారు ఒక సీట్కు 600 కోట్లు పెడితే ఈయనేం తక్కువ కాలే, వీళ్ళు కూడా సుమారు 200 నుంచి 300 కోట్లు. ఇట్లా కోట్లాల రూపాయలు అండ్ వ్యక్తిగతంగా కాదు, పార్టీ లేదు ఆడ. ఈటెల రాజేందర్ కూడా మా బీజేపీకి ఓటేయండి అని ఎక్కడ చెప్పలే. నన్ను ఉద్యమ నాయకుడిని, నాకు అన్యాయం జరిగింది, నా అన్నాడు కానీ బీజేపీ ఓ మంచి పార్టీ, నేను బీజేపీ కానీ పోలే. అందుకు विजयनगर ग्राउंड पिलर नंबर 285 के पास क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया। इस मौके पर OS ग्रुप के चेयरमैन उस्मान सालेसादी साहब और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बहुत का दुकान रखा है यहाँ पे, प्राइजिंग मनी फॉर विनर एंड सलमान बहुत सामना करेंगे सलमान का। चेयरमैन मिस्टर उस्मान सालेसादी हैं, जो OS जूनियर एंड डिग्री कॉलेज एंड इन OS इंटरनेशनल स्कूल के भी फाउंडर हैं एंड ओनर। उनकी जानिब से ये यंगस्टर्स के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसमें 8 टीम हिस्सा ले रहे हैं एंड ही इज़ द ओनली स्पॉन्सर, होल स्पॉन्सर, सोल स्पॉन्सर फॉर दिस टूर्नामेंट। दिस टूर्नामेंट इज़ कंसिस्ट विद 8 टीम्स और दिस विल रन फॉर 2 days
इंशाल्लाह हमारी ओपनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है. दिस इज़ द थर्ड मैच गोइंग ऑन राइट नाउ एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट इज़ one of the team is actually a seniors team which is actually classmates of Mr. Usman Saleh Sadi. उनका भी एक टीम इसमें हिस्सा ले रहा है. मैं सभी व्यूवर्स, सभी देखने वाले और सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का मैच, आज के सारे मैचेस और कल के मैचेस देखने के लिए ग्राउंड पर आएँ, जो कि विजय आनंद क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. मैं मेरे साथ सभी साथी हमारे मौजूद हैं, क्लासमेट्स एंड हमारे ऑर्गेनाइजर्स टीम के कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे अली पाशा, अली बिन हाजिब, खालिद साहब, हमारे श्रीधर, रत्नम एंड हमारे नासिर साहब एंड मिस्टर उमर साहब. मैं फिर एक बार हमारे चेयरमैन ऑफ ओएस ग्रुप मिस्टर उस्मान साले सादी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल एंड वेरी बिग टूर्नामेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कराने में हमारी हेल्प की और प्राइज़ मनी के साथ इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं. दिस इज़ टीआरएस पार्टी के लीडर ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर कई सारे इल्ज़ामात लगाए. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. और जो आज के हालात हैं, ये तमाम चीज़ देखते हुए मेरे अपने एहसासात और जज्बात, जो भी मेरे मुशाहिदात, ये तमाम आप तमाम के सामने रखना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज़, मैं सन 2001 में मैंने तेलंगाना राष्ट्र समिति ज्वाइन किया. उससे पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता था और वहाँ पर हमें पूरी आज़ादी थी. हक़ के लिए हम हर एक से लड़ सकते थे और हक़ दिला सकते थे. लेकिन जब हमने केसीआर साहब को एक सेकुलर आइकॉन की हैसियत से देखा और उनके तकारीर सुने, तो उन्होंने हर वो बात जो उन्होंने वादे किए थे, उसमें उनका वायदा था कि आप लोगों के साथ सियासी जो आप लोगों को हिस्सेदार होना चाहिए था, आप उस सियासी हिस्सेदार नहीं बन सके. आप ये सियासी जमात में आज तक, हम आपको सियासी हिस्सेदार बनाएंगे, हम आपको जुडिशरी पावर देंगे. औकाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही उसके लिए हम आपको औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करवाएंगे और हम आपको कमिश्नरेट में तब्दील करवाएंगे. और आपके साथ जो 12%, 14% की जो 12% के हिसाब से जो आपका हिस्सा बनता है, वो तमाम सियासी जमात में आपको भी बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे. और ये तेलंगाना को हम गोल्डन तेलंगाना बनाएंगे. और जो नवाब के ज़माने में जो निज़ाम सरकार थे, उस वक्त तमाम खुशहाल लोग थे, जो लोग पहले देने वाले थे. आज निज़ाम सरकार के दौर के बाद, आंध्रा वाले आने के बाद, ये फिर लेने वाले हो गए. मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आज लेने वाले हैं, उनको मैं तेलंगाना आने के बाद देने वाले बना दूंगा. ये तमाम चीज़ों का नतीजा था हम तेलंगाना राष्ट्र समिति को कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के इसके अंदर ज्वाइन करें. आज ज्वाइन करने के बाद हमारा 2001 से लेकर आज तक हैदराबाद की पहली टीआरएस ऑफिस थी, जो केसीआर साहब ने मेरे आगे इनाग्रेशन किया था. और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद की पहली टीआरएस ऑफिस का मैं इनाग्रेशन कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत ऑफिस खुलेंगे. लेकिन मेरी ऑफिस की जो है वो अहमियत कमर साहब की अलग रहेगी. लेकिन वो कहाँ गया वायदा नहीं मालूम. इस वक्त तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ 2014 में, उस तक के वो तारीख तक के केसीआर साहब का रहन सहन का अंदाज बिल्कुल ही अलग था. तमाम के साथ मिलजुल के रहा करते थे. और एकदम जैसा ही तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जैसा ही यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलायंस हुआ, ये पार्टी के जितने भी कारगुजार थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो सिपाही थे, तमाम को उन्होंने खैर बात किया. यहाँ तक कि किसी को बुला के एक तहनीती इजलास रखने की भी कोशिश नहीं की कि आप लोगों की बदौलत आज तेलंगाना आ गया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहने के लिए भी एक तहनीती इजलास नहीं रखा गया. और आज उसी का नतीजा है कि आज तमाम के तमाम पार्टी के जो सिपाही है, तमाम की तमाम मायूस है. उसमें तो कई ऐसे हैं जो आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, कई ऐसे हैं बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं, कई ऐसे हैं जिस हालत के हिसाब से बिल्कुल बदहाल हालत में है. और उसके बावजूद कभी केसीआर साहब ने कभी पुराने जो सिपाही थे उनको बुला के कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे लोगों का कुछ तो कुछ ख्याल किया जाए. बल्कि आपने जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलायंस किया, ये एक साथ पूरे लोगों को जो पार्टी के थे तमाम को छोड़ दिया. आज माउंट हीरा हॉस्पिटल में फ्री डायबिटिक कैंप मुनक्किद किया गया. इस मौके पर नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन साहब और भी दीगर लोग मौजूद थे. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. अस्सलाम वालेकुम.
मैं डॉक्टर अनिका हुसैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सेकेंड और थर्ड को हम लोग कैंप रखे थे, डायबिटिक अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग कैंप। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सक्सेसफुल हुआ ये कैंप। ये कैंप हम लोग जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब एंड मोहम्मद नसीरुद्दीन एंड मोहम्मद क़ासिम जो कॉर्पोरेटर हैं उनके सरपरस्ती में कंप्लीट हुआ था कैंप। ये कैंप एक्सक्लूसिवली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रखे थे हम लोग, क्योंकि ये 14 नवंबर इज़ अ डायबिटिक डे, तो वो इंटेंशन से हम लोग ये कैंप रखे थे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं, तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड ये कैंप में हम लोग फ्री कंसल्टेशन रखे थे पेशेंट्स के लिए, अलॉन्ग विथ फ्री BP वेट चेकअप एंड फ्री GRBS चेकअप। उसके साथ साथ हम लोग डायबिटिक पैकेज एंड जो एक्सटेंडेड डायबिटिक पैकेज बोल के हैं उस पर भी 50% ऑफ रखे थे हम लोग पेशेंट्स के लिए। अराउंड 50। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से एक एहतजाज किया गया। ये एहतजाज त्रिपुरा के मुसलमानों पर जुल्म के ख़िलाफ़ किया गया और त्रिपुरा CM के पुतले को जलाया गया और चप्पलों से भी मारा गया। डाले थे BJP वाले, RSS वाले, संघ परिवार वाले, करीब 10,000 आदमी विदाउट परमिशन जैसे रैली निकाले। रैली में हथियार समेत JCP को लेके निकाला गया। मैं ये वहाँ की हुकूमत से सवाल करता हूँ कि हथियार पुलिस के सामने और JCP को लेकर ऐसा निकले कि रोड पे जहाँ जहाँ मस्जिद मिलती थी वहाँ उसको शहीद करते चले गए, जहाँ जहाँ मुसलमानों के घरां दिखेगा वहाँ मुसलमानों के घरां जलाते गए। तो त्रिपुरा में क्या एक FIR इशू हुआ क्या? त्रिपुरा में किसी को अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि ये RSS इनके साथ है, BJP सेंटर में इनका सपोर्ट कर रही। और RSS एक ऐसी जमात है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। RSS ब्रिटिश के ज़माने में जासूस थे, इनके DNA में गद्दारी है, इनके DNA में जासूसी है। तो ऐसे RSS और BJP और संघ परिवार मिलकर आज हिंदुस्तान का फ़िज़ा ख़राब कर चुके हैं, हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब कर चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि हमको उठना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आवाज़ आप नहीं उठाएंगे, इनकलाब अगर नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, चेंज नहीं लाएंगे, आने वाले नस्ल कशी होने वाली है, जेनोसाइड होने वाला है। आज त्रिपुरा है, कल हैदराबाद होगा, परसों बेंगलुरु होगा। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की फिजा खराब हो चुकी है। और आपको किसको वोट डालना पड़ेगा? आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। 60 साल आज़ादी, 70 साल की आज़ादी में कौन सी पार्टी आपके माइनॉरिटीज़ के लिए काम करी? आपको सोचना पड़ेगा। फैसले की घड़ी आ चुकी है, फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। आपका वोट, आपका फैसला, आपका मुस्तकबिल, आपका तेलंगाना का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, हैदराबाद का मुस्तकबिल है। तो मैं हर एक नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, सबसे मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, गैर मुसलमानों, बहादुर मुसलमानों, मोमिनों, भाइयों, आपको फैसले की घड़ी आ चुकी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब पार्टी एक ऐसी तंजीम है जो सेकुलर जमात है और बड़ी अच्छी तरीके से उभर कर आई है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप नौजवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब लेके आएंगे। त्रिपुरा के हालात फिर से होने मत दीजिए भाई। बर्मा के जैसे हालात हुए त्रिपुरा में हुए, कल के दिन हैदराबाद में भी होंगे। आप देख लीजिए GHMC इलेक्शन में BJP के कितने कारपोरेटर्स आए। अब हुजूराबाद का आप इलेक्शन देख लिए, हल्लोलू पेनिट्रेट होने जा रहे हैं। कल के दिन यही TRS BJP मिलकर हुकूमत बनेंगी, इनो CM, इनो डिप्टी CM बनेंगे। हालात खराब होने जाने वाले, हालात बहुत खराब होने वाले हैं। आपका फर्ज बनता, आप यू विल बी आंसरेबल, यू विल बी आंसरेबल। यू हैव टू फाइट विद इन द framework of the constitution. You have to raise your voice, you have to stand for your future, you have to stand for your children's future. abhi nahi to kabhi nahi. If not today, then it's not going to happen. You have to raise. फलकनुमा ब्रिज के दोबारा आगाज़ पर AIMIM के लीडर कलीम इबीस ने AIMIM प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और चंदनगुट्टा MLA जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा किया। मैं GHMC एरिया सभा मेंबर कलीम इबीस, AIMIM लीडर, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब और मज़हब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो फलकनुमा का ब्रिज का काम हुआ, जल्द से जल्द काम कराए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तो 2 किलोमीटर फिर के जाना पड़ रहा था हमारे को। यहाँ से लाल दरवाजे गए तो 2 किलोमीटर हो रहा था और छानी से फिर तो 1 किलोमीटर हो रहा था। शास्त्रीपुरम से जा रहे तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी और बहुत आवाम आज बहुत खुश हुई जो ये ब्रिज खुल गया। हम दिल की गहराइयों से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का और मौसम खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों को बहुत खुशी मिली है आज इस वजह से कि ब्रिज खुल गया और दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। एक साइड का और एक काम चालू, ये कितने दिन में तैयार होगा? ये इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा काम।
जो एक साइड का जो बंद है वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। अब फिलवक्त तो देखिए आप जा रही आवाम बहुत खुशी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही, बहुत खुशी महसूस हो रही है आज हमारे को। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हबीब मिल्लत अकबर साहब मौसम साहब का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।